Hello students, today I am going to introduce about the next chapter, that is aldehyde ketones and carboxylic acid. Now, what are the methods of preparation of aldehydes and ketones? देखो बेटा, this is aldehyde group. Here any R group is attached here. This is the alkyl group and this is aldehyde group. In case of ketone, suppose this is R alkyl group and here CO group is ketone group and this is R dash. Any other alkyl group is present here. In both aldehyde and ketones, one CO group is present here. So this group is carbonyl group. CO is a carbonyl group. Okay. Carbonyl. Okay. Means the organic compounds which contains the carbonyl group, these are aldehyde, ketones, carboxylic acids and their derivatives. Okay. डेरिवेटिव्स कौन से हैं बेटा? जैसे एसाइल हैलाइड, देखो डेरिवेटिव्स में अभी बताती हूँ आपको. जैसे ये बेटा सी डबल बॉन्ड ओ एक्स, ये है एसाइल हैलाइड. सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, दिस इज acid anhydride R CO OR dash, this is ester. Okay, and the next is R C double bond ONH2, this is acid amide. Okay, now let us start the preparation and methods of aldehyde and ketones. How will you prepare the aldehyde or ketone from alcohol? फर्स्ट मेथड इज फ्रॉम एल्कोहल. देखो बेटा, बाय ऑक्सीडेशन, एल्कोहल में ऑक्सीडेशन करते हैं. जब हम प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं पीसीसी डाल के, पीसीसी क्या होता है? पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट. ठीक है, ये क्या करेगा बेटा? ऑक्सीजन देगा, ऑक्सीडेशन करेगा. ठीक है, ऑक्सीजन हमें देगा और ये क्या बनाएगा? एल्डिहाइड बनाएगा. ठीक है, तो ये इसमें से निकलेगा क्या? देखो H2, यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहाँ से और ये वाला ऑक्सीजन, तो वाटर निकल जाएगा और इट विल प्रोड्यूस द एल्डिहाइड. इट मीन्स प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एल्डिहाइड मिलेगा. ओके, अब देखो, अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल का मतलब क्या है कि दो आर ग्रुप हैं, यहाँ पे CHOH है. इसको हम एल्कलाइन KMnO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो इसमें हमें क्या मिलता है? इसमें हमें कीटोन मिलता है, क्योंकि बेटा एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक यहाँ से, और जो एल्कलाइन ग्रुप KMnO4 है दैट विल गिव ऑक्सीजन. तो हेयर ऑल्सो वाटर इज रिलीज इन सेम एज in primary alcohol we have done. Okay, so this one also produce the ketones. Means primary alcohol gives aldehyde on oxidation and secondary alcohol on oxidation it will give the ketone. Okay, now next is alcohol से ही second type की reaction, that is catalytic dehydrogenation. D means removal. Hydrogenation means hydrogen, means removal of hydrogen in presence of copper, silver at 573 Kelvin. देखो बेटा, प्राइमरी एल्कोहल है, कॉपर और सिल्वर जब मेटल ऐड करते हैं 573 केल्विन पे तो इट विल बी चेंजेस इनटू एल्डिहाइड. व्हाट विल बी रिलीज हेयर? हेयर हाइड्रोजन इज रिलीज H2 की फॉर्म में. ठीक है, दिस one hydrogen from this carbon and one hydrogen from here, H2 is released and aldehyde remains left. Okay, same in this condition, secondary alcohol in presence of copper or silver, it will changes into the this hydrogen and this hydrogen, that will be released H2 and it will give ketones type compound. Okay, so these are the preparation of aldehyde and ketones from alcohol. Okay,
नाउ द नेक्स्ट प्रिपरेशन इज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन. दिस इज द सेकेंड प्रिपरेशन. देखो बेटा, हाइड्रोकार्बन में फर्स्ट आता है ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन. ओजोनो मीन्स O3 ऐड करेंगे बेटा, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन करना. ठीक है, दिस रिएक्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम. हाउ विल यू टेक ओजोनोलाइसिस. देखो, एल्कीन लोगे बेटा, कोई भी एल्कीन आप लेते हो, O3 ऐड करोगे तो एक बॉन्ड इसका यहाँ से टूट जाएगा और आप यहाँ पे एक ऑक्सीजन यहाँ अटैच कर दो, वन हेयर. ओके, एंड आफ्टर दैट in presence of zinc and water, this will be break down, this will also break down, it will form ZNO. This oxygen come with zinc and it will form two types of product, CH2O, CH2O. You can write here 2HCHO. This is formaldehyde. Okay, देखो बेटा कैसे करेंगे. सपोज यू टेक द अनदर एग्जाम्पल. ये लिया बेटा हमने प्रोपीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. इस केस में क्या होगा बेटा, हमें O3 ऐड करना है, ओजोन डालना है. देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस O3, तो इट विल गिव्स. देखो अब बेटा ये क्या है, CH3, दिस इज CH, दिस बॉन्ड ब्रेक डाउन, ये बॉन्ड ब्रेक होके ये यहाँ CH2 है, ब्रेक करके यहाँ ऑक्सीजन लगाना है, दिस वन ऑक्सीजन और ये यहाँ. दिस बॉन्ड ब्रेक डाउन एंड दिस बॉन्ड ऑल्सो ब्रेक डाउन, दिस इज लाइसिस, ये इसको यहाँ से ब्रेक डाउन करेंगे. अब इन प्रेजेंस ऑफ जिंक प्लस वाटर इट विल फॉर्म, किस टाइप का कंपाउंड बनाएगा. देखो, दिस विल फॉर्म ZNO आपका यहाँ से निकल जाएगा, प्लस यहाँ ये वाला कंपाउंड बचेगा CH3 CH डबल बॉन्ड O, यहाँ ये आ जाएगा. ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा, HCHO. ओके, ये बना दिया. ओके, सो दिस टू प्रोडक्ट इज फॉर्म. ये आपका एसिटाल्डिहाइड है, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड. ओके, नाउ नेक्स्ट सेम इन दिस कंडीशन, दिस इज CH3 CH3 double bond CH2. Here ozonolysis takes place, double bond breakdown, and after that oxygen is added here, and in presence of zinc plus water, here ZNO is released and this will compound CH3 CO CH3, this is acetone, and HCHO, this is formaldehyde. Now next is bihydration of alkyne. अब ये भी इसी से बेटा, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन में क्या करते हैं हम, एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एंड HgSO4 मर्क्यूरस सल्फेट. ओके, तो इसमें क्या होगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल एडिशन टेक्स प्लेस. जैसे ये ट्रिपल बॉन्ड है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, यहाँ वाटर ऐड करते हैं, तो इस केस में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा और एक पे H चला जाएगा, दूसरे साइड OH. ओके, तो यहाँ पे H, यहाँ OH, दिस इज अनस्टेबल फॉर्म. ठीक है, आफ्टर दैट टोटोमेरिज्म टेक्स प्लेस. टोटोमेरिज्म मीन्स कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म. ठीक है, तो बेटा ये वाला जो हाइड्रोजन है दैट विल बी शिफ्टेड टुवार्ड्स दिस कार्बन. तो दिस इज द रीअरेंजमेंट, इसको हम रीअरेंजमेंट बोलते हैं बिकॉज दिस कंपाउंड इज नॉट स्टेबल. After rearrangement, it will form CH3CHO. This is acetaldehyde. Okay. Now next is CH3 single bond C triple bond CH HOH after hydrolysis in presence of H2SO4 and HgSO4. Addition of water takes place. Then single bond breakdown. One side here hydrogen and another side OH is here. After that, after tautomerism, it will form a stable complex. This OH group comes here and it will form a acetone. Now the next preparation is from benzene. In this, one name reaction is Gattermann-Koch reaction. In this reaction, this is having a reagent
KOCH. So it means CO or HCl is here. Benzene is converted into benzaldehyde in presence of CO and HCl, and anhydrous AlCl3 is formed. ठीक है, in presence of anhydrous AlCl3 it will converted into benzene to benzaldehyde. Okay. Now next is Friedel-Crafts acylation. In Friedel-Crafts acylation, benzene in presence of acyl chloride in presence of anhydrous AlCl3, it will be converted into this form. Here HCl is released. Suppose this is benzene, this is R C double bond O Cl. Here hydrogen is released, H from benzene ring and Cl from acyl chloride, and HCl is released in presence of anhydrous AlCl3, and this will be formed RCOR. Now next is by oxidation of methyl benzene. Strong oxidizing agent that oxidize the alkyl benzene to benzoic acid. तो suitable जो oxidizing agent है that is वही कन्वर्ट करते हैं बेटा मिथाइल बेंजीन को बेंजल्डिहाइड में. तो कौन से हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? जैसे क्रोमाइल क्लोराइड. ओके, लाइक दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल इटार्ड रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ टॉलिन. क्रोमाइल क्लोराइड इज हियर, CH2 की प्रेजेंस में क्या बनेगा? क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनेगा. CHO CrOHCl ट्वाइस. ठीक है, इसका वोल ट्वाइस लेंगे हम. आफ्टर हाइड्रोलिसिस इट विल बी कन्वर्टेड इनटू दिस. ये वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन. हेयर H, हेयर ऑक्सीजन इज हेयर एंड हेयर H2 इज हेयर. ओके, बिकॉज 2 टाइम है, 2 टाइम से तो 2 हाइड्रोजन आपके यहाँ पे जुड़ जाएंगे. देन इट विल फॉर्म द बेंजल्डिहाइड. ओके, दिस इज द इटार्ड रिएक्शन. Now next is by using chromic oxide in acetic anhydride. This is toluene in presence of CrO3. This is acetic anhydride, CH3, C double bond O, O, C double bond O, CH3. Here it will be converted into CH. This bond is break down here, OCOCH3, this one 2 times, and after hydrolysis it will give this type of product. Here oxygen, here 2 hydrogens are released and it will form a benzaldehyde. Now next is by side chain chlorination followed by hydrolysis. अब chlorination कैसे होगा बेटा? Toluene in presence of Cl2 or H-mulite, it will be converted into benzyl chloride, and after hydrolysis it will form a benzaldehyde. Okay, so these are the methods which are used to convert the toluene to benzaldehyde. फर्स्ट रिटार्ड रिएक्शन से भी कर सकते हो. सेकेंड, आप इसमें क्रोमिक ऑक्साइड भी डाल सकते हो, तब भी बेंजल्डिहाइड मिलेगा. थर्ड, इसमें हम क्लोरीन और HMU की लाइट पास करा सकते हैं तो भी हमें बेंजल्डिहाइड मिलेगा. एनी मेथड यू कैन यूज इन योर कन्वर्जन्स. नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज फ्रॉम एसाइल क्लोराइड बाय रोजनमंड्स रिडक्शन. इसमें क्या होता है? ये एसाइल क्लोराइड है बेटा, इसमें H2 रिडक्शन करते हैं, हाइड्रोजन ऐड होगा. किसकी प्रेजेंस में होगा? प्लेडमियम और BaSO4 की प्रेजेंस में. तो यहाँ से क्या होगा? एक हाइड्रोजन यहाँ से HCl, यहाँ से HCl रिलीज हो जाएगा. व्हाट विल बी फॉर्म? एल्डिहाइड इज फॉर्म. ठीक है. इन रोजनमंड्स रिडक्शन रिएजेंट इज PdBaSO4. इट विल गिव 2 हाइड्रोजन and after that from acyl chloride 1 Cl is released here. Okay, and after that in the reaction HCl is released and it will form the aldehyde.
Now next reaction from acyl halide. This is by treating acid chloride with dialkyl cadmium R2CD. Here RMgCl is formed. This is Grignard reagent, and in presence of CdCl2 इट विल फॉर्म द डाईअल्काइल कैडमियम. पहले हमने डाईअल्काइल कैडमियम बनाया बेटा. अब इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? एसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे. देन CdCl2 इज रिलीज एंड इट विल फॉर्म द RCOR. दिस इज कीटोन. ओके. तो कीटोन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्टली ट्रीटिंग द ग्रिग्नार्ड reagent with acyl chloride, बट ग्रिग्नार्ड reagent इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ग्रिग्नार्ड reagent को पहले किस में कन्वर्ट करते हैं? डाईअल्काइल कैडमियम में. आफ्टर दैट दिस डाईअल्काइल कैडमियम दैट रिएक्ट विद द एसाइल क्लोराइड एंड इट विल गिव द कीटोन, एंड कीटोन प्रोड्यूस रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड reagent टू गिव द टर्शियरी अल्कोहल. इसके बाद ये टर्शियरी अल्कोहल भी दे सकता है. ओके. नाउ द नेक्स्ट प्रिपरेशन इज फ्रॉम साइनाइड और नाइट्राइल्स. इसमें बेटा दो रिएक्शंस होती हैं, स्टीफन रिडक्शन एंड सेकेंड इज ग्रिग्नार्ड reagent टू साइनाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस. स्टीफन में क्या होता है बेटा? देखो इसमें हम नाइट्राइल लेते हैं RC ट्रिपल बॉन्ड N, इसको हम नाइट्राइल बोलते हैं या इसका साइनाइड भी नाम होता है. अब इसमें क्या होता है? SnCl2 और HCl ऐड करते हैं. ये क्या करेगा? हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि रिडक्शन होता है ना जहाँ पे हमारा, तो होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. ऐड होगा, सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड आपका टूट जाएगा यहाँ से, तो एक हाइड्रोजन इसके पास और एक इसके पास, तो ये बना RCH NH2. इसका नाम है इमीन. आफ्टर हाइड्रोलिसिस दिस बॉन्ड ब्रेक डाउन. अब आपका ये वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा, जो एक सिंगल बॉन्ड और ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो ये आपका देगा ऑक्सीजन और ये आएगा H. यहाँ अमोनिया रिलीज हो जाएगा एंड एल्डिहाइड इज फॉर्म. Now next is by addition of Grignard reagent to cyanide followed by hydrolysis. इस केस में क्या होगा बेटा? देखो ये आपका साइनाइड है, ग्रिग्नार्ड reagent लिया, R नेगेटिव मैग्नीशियम X पॉजिटिव. अब साइनाइड पे पॉजिटिव है, ये वाला बॉन्ड नेगेटिव, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन हुआ. ठीक है. बॉन्ड ब्रेक डाउन होने पे एक पॉजिटिव आया, एक नेगेटिव आया. ठीक है. नेगेटिव किसके पास जाएगा? पॉजिटिव के पास, पॉजिटिव वाला नेगेटिव के पास. तो RCR NMgX. After hydrolysis this bond is also break down, and here oxygen and here NH2. This will form a ketone and it will form NH2MgX. Okay. Now the next preparation is by reduction of nitriles and ester with Dibal H. Dibal H क्या होता है बेटा? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड. ओके. दिस इज द फॉर्मूला CH3CH, इस पे CH3 ग्रुप अटैच है, CH2. दिस इज आइसोब्यूटाइल ग्रुप, ये 2 टाइम्स है बेटा. एल्यूमिनियम हाइड्राइड ALH. ठीक है. तो आप सिंपल डिबाल H बोलोगे इसे. इसमें क्या होता है? कोई भी नाइट्राइल लिया आपने, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 और यहाँ पे CN लगा दिया, तो CN का मतलब क्या? C ट्रिपल बॉन्ड N. ओके. इसमें डिबाल H और वाटर ऐड किया है, तो इस केस में क्या होगा? हमारे पास ये वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा. ठीक है. पहले एक बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, यहाँ पे क्या आएगा? हाइड्रोजन. यहाँ पे हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या आएगा? H. ठीक है. तो मतलब इसमें क्या होगा कि आपके 2 बॉन्ड ब्रेक होंगे, एक में ऑक्सीजन आ जाएगा और दूसरे में H2. ठीक है. ये ऐसे होगा, देखो मैं बताती हूँ. C ट्रिपल बॉन्ड N है, एक बॉन्ड ब्रेक डाउन हुआ, H आया, यहाँ गया बेटा OH. दूसरा बॉन्ड ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ पे आया ऑक्सीजन, यहाँ आया H2. ठीक है. तो हमारा पास ये क्या बचा? CHO बचा ना. तो ये जो CN है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू CHO. बाकी आपको सेम लिखना है. ठीक है. चेन आपको सेम बनानी है. ओके. अनसेचुरेशन इज नॉट रिड्यूस बाय डिबाल H. डिबाल H से डबल बॉन्ड नहीं टूटेगा, ओनली C ट्रिपल बॉन्ड N, मतलब नाइट्राइल का ही ग्रुप जो है जाएगा इसमें. ठीक है. नाउ नेक्स्ट फ्रॉम एस्टर से कैसे बना सकते हो? अगर एस्टर में हम डिबाल H डालते हैं तो देखो सेम केस यहाँ पे है. आपका कौन सा बॉन्ड टूटेगा? ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा. ठीक है. और डिबाल H क्या करेगा? एक हाइड्रोजन इसको देगा, एक यहाँ देगा, ये मीथेनॉल निकल जाएगा, मीथेनॉल प्लस
ये क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा. दिस इज प्रोपेनॉल. ओके, सो दीज आर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स. नाउ व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स. देखो बेटा, सॉल्युबिलिटी. Lower aldehyde and ketones like methanol, ethanol, propanol that are soluble in water in all the ratio. क्यों होते हैं बेटा ये soluble? क्योंकि ये क्या होते हैं, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं. लाइक दिस, ये आपका कीटोन है, RCR डबल बॉन्ड हो, ठीक है. यहाँ भी कीटोन है, दोनों ने क्या किया, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ली, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई, ठीक है. तो सॉल्युबिलिटी जो होती है इसकी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि ये वाटर के साथ क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं. बट इस केस में और क्या होता है बेटा, जो सॉल्युबिलिटी होती है एल्डिहाइड और कीटोन्स की, वो वाटर के साथ डिक्रीज होती जाती है जैसे जैसे एल्काइल चेन का नंबर बढ़ता जाता है. अगर ये आर का नंबर आप इंक्रीज कर दोगे तो सॉल्युबिलिटी कम होती चली जाएगी, ठीक है. क्यों? क्योंकि हाइड्रोफोबिक पार्ट ज़्यादा आ जाएगा, और हाइड्रोफोबिक पार्ट की वजह से जो होता है वो आसानी से बॉन्ड नहीं बना पाएगा, ठीक है. एल्काइल ग्रुप का जब साइज़ बढ़ता जाएगा तो सॉल्युबिलिटी अपने आप डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि नॉन पोलर पार्ट जो है मॉलिक्यूल के अंदर इंक्रीज होता चला जाएगा, इसलिए वो लेस सॉल्युबल होता चला जाएगा. ओके, सेकंड है बॉइलिंग पॉइंट. एल्डिहाइड कीटोन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द हाइड्रोकार्बन्स एंड ईथर, ठीक है. क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन्स में क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है, इस वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट लोअर होता है एज कम्पेयर टू एल्कोहल्स. जबकि एल्कोहल में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है. ओके, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है. एल्डिहाइड एंड कीटोन्स that is made up of carbonyl group, ठीक है, which is polar in nature and they have a strong dipole dipole interaction between the opposite end of CO dipoles. So this dipole dipole interaction is weaker as compared to the alcohol which form a intermolecular hydrogen bond. So the boiling point of aldehyde and ketones that are lower as compared to alcohol. Now next are the chemical properties of aldehyde and ketones. First is nucleophilic addition reaction. Aldehyde and ketones that are highly reactive compounds, but both aldehyde and ketones that undergo nucleophilic addition reaction means nucleophile attack karega after that addition takes place. How the aldehyde and ketones are very reactive. The reactive nature of aldehyde and ketones, that is due to the presence of polar CO group. Okay, as oxygen atom that is more electronegative and it pull the electron towards itself and it will form a partial negative charge, whereas the partial positive charge that is developed on the carbon atom. Okay, so the positively charged carbon atom of carbonyl group that is attacked by the nucleophile here, ठीक है, for the initiation of the reaction. So it leads to the formation of this type of complex, ठीक है. It leads to the formation of intermediate anion and it will undergo the attack of H positive ions and it will form the final product. Means the nucleophilic reaction that may be catalyzed by acids or base. Okay, so first this basis is planar form, after that it will form tetrahedral intermediate and at last it will form the addition product. So first step is the slowest step and this is the rate determining step. Okay, one more question arises from here. Out of aldehyde and ketones, which one is more reactive? Aldehydes are more reactive than the ketones because ketones में क्या है बेटा, दो alkyl group present होते हैं. ये कीटोन है आपका, 2 alkyl groups are present here. It means यहाँ पे stronger plus I effect होगा. तो due to the stronger plus I effect, it decrease the positive charge on the carbonyl carbon. Okay, and reactivity क्या हो जाएगी, decrease. सेकेंड आप ये भी कह सकते हो सेकेंड रीजन कि कीटोन्स आर स्टेरिकली हिंडर्ड एज कम्पेयर टू एल्डिहाइड, जबकि एल्डिहाइड में एक ही आपके पास क्या होता है, अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है. ओके, बट
Electron withdrawing group if attached to the carbonyl carbon that increase the intensity of positive charge and reactivity is increase. Electron donating group क्या करेंगे? Decrease the intensity of positive charge, so it will decrease the reactivity. ठीक है. So due to this reason aldehydes are more reactive as compared to ketone towards the nucleophilic substitution reaction, nucleophilic addition reaction. Okay. One question arises from here. Out of propanol and benzaldehyde, which one is more reactive? This is propanol and benzaldehyde. बेटा benzaldehyde में क्या है? बेंजीन रिंग है. It undergo resonance. तो it will form a. तो benzaldehydes that shows the positive charge that is delocalized due to the resonance. Okay. पहले यहाँ जा रहा पॉजिटिव आया, फिर यहाँ गया पॉजिटिव, फिर यहाँ पे आया, और आफ्टर दैट इट विल फॉर्म अ दिस स्ट्रक्चर ड्यू टू रेजोनेंस विच डिक्रीज द इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ऑफ द कार्बोनिल कार्बन. अब पॉजिटिव चार्ज आया हुआ बेंजीन रिंग पे, इट मीन्स इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं करेगा इस पर. इलेक्ट्रोफाइल पे भी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, तो इट मीन्स न्यूक्लियोफाइल दैट अटैक मोर इजीली एट दीज कार्बन एटम, दिस वन एंड दिस वन. Okay, so which one is more reactive? This benzaldehyde is more reactive, okay, due to resonance. Now what is the order of reactivity? First is formaldehyde because यहाँ पे alkyl group नहीं है, यहाँ one alkyl group है, after that two alkyl group 3 4 and the number is increases, तो reactivity decrease होती चली जाती है. okay, क्योंकि hindrance बढ़ जाती है. ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल जो है आसानी से वहाँ पे अटैक नहीं करेगा. तो जिसमें अल्काइल ग्रुप कम होगा तो वही ज़्यादा रिएक्टिव होगा. सेकंड केस, दिस इज इन दिस केस यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ कोई ग्रुप नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है. तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है? पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देता है, इस वजह से इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज carboxylic acid and their derivatives that also have CO group but they don't give nucleophilic addition reaction. ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देता, जबकि इसमें भी क्या होता है? CO ग्रुप प्रेजेंट होता है. क्योंकि बेटा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसमें क्या होता है? जो ऑक्सीजन होती है उसके पास लोन पेयर होते हैं, वो अटैक करते हैं, यहाँ ये वाला इधर चला जाता है, तो यहाँ एक रेजोनेंस हो जाती है. इस वाले ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव. मीन्स ड्यू टू रेजोनेंस पॉजिटिव चार्ज अपीयर ऑन द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम. तो आप यहाँ देख रहे हो इस ऑक्सीजन पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. ठीक है, विच इज़ नॉट अ परमानेंट पॉजिटिव साइट. ये परमानेंट पॉजिटिव साइट नहीं है, जबकि ये ऑक्सीजन एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर भी इस पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है. सो ड्यू टू दिस इट डज नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. ओके, नाउ नेक्स्ट इज रिएक्शन विद HCN. देखो बेटा, दिस इज CO ग्रुप, दिस हैविंग वन बॉन्ड इज ब्रेक डाउन, one carbon having positive charge and oxygen having negative charge. Same in case of HCN, H positive, CN negative. Negative charge goes to positive charge and it will form CN, or यहाँ cyanohydrinase form. This reaction takes place very slowly in presence of pure HCN, so it is a weak acid. Okay, it is catalyzed by a base, base से भी हो सकती है. तो it generate the CN negative nucleophile which is a strong nucleophile. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ही ऐड होता है कार्बोनिल कार्बन पे. तो CN क्या है? न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे. तो साइनोहाइड्रिन जो होता है यूज़फुल प्रोडक्ट जो है कंपाउंड्स बनाता है हमारी, जब हम इसकी सिंथेसिस करते हैं. तो ये देखो जो साइनोहाइड्रिन है दैट इज़ यूज्ड टू सिंथेसाइज मैनी अदर कंपाउंड्स. और भी कंपाउंड्स बनते हैं इसकी सिंथेसिस से. जैसे आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐड किया, तो ध्यान रखना बेटा इसमें, ये इम्पोर्टेंट है. जब कहीं पे भी साइनोहाइड्रिन की रिएक्शन आती है तो आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालते हो, तो इसको खोलो आप, C∼N है. तो बेटा एक बॉन्ड टूटा, ये क्या करेगा? हाइड्रोजन देगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक इधर. दूसरा बॉन्ड ब्रेक डाउन हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ, फिर यहाँ. दिस इज CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, तो इट विल बी फॉर्म दिस. नाउ नेक्स्ट इज C∼N. इन दिस केस OH नेगेटिव एंड H2O पॉजिटिव इज फॉर्म. देखो ये वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन, दिस विल बी O और H. ओके, वाटर डालना है O और H2, तो दिस विल बी फॉर्म
NH2 or this is CO, double bond is present here. नाउ नेक्स्ट इज कंप्लीट हाइड्रोलिसिस. अगर ये तो थी बेटा पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें एसिड अमाइड मिलेगा. अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं हम इस फॉर्म में तो यहाँ पे क्या होगा, HOH. देखो सॉरी, दिस वन हैविंग 1 ऑक्सीजन हैविंग 2 हाइड्रोजन. ओके, and in this form this bond is also break down. Okay, this one OH and this is H. तो here ammonia is released, NH3 is released, plus यहाँ क्या बना, COOH. this carboxylic group is formed here. Okay, तो this reaction is very important for your exam. See again, अगर हम साइनोहाइड्रीन को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐड करते हैं मीन्स रिडक्शन करते हैं तो इट विल फॉर्म अ अमीन टाइप कंपाउंड. अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं देन अमाइड इज फॉर्म्ड. अगर कंप्लीटली हाइड्रोलिसिस करते हैं देन कार्बोक्सिलिक एसिड इज फॉर्म. ओके, सो दीज आर द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.